السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس سے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور مجھے دل کی باتیں کرنے کا موقع دیا. مطلب پریس کانفرنس کا انعقاد تو آپ نے کیا ہے، ہم لوگ تو اپنے اپنے مائک لے کے آ گئے. ویسے جنید صاحب، میں یہ جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا چینل اس میں سے ہے کون سا؟ یہ ٹرینڈی نیوز ہے یا یہ والا یہ بے ٹائم نیوز ہے یا یہ والا چپ چاپ چینل ہے یا جلیبی نیوز ہے؟ یہ جلیبی نیوز جو ہے یہ گراٹو چینل ہے یا سادہ چینل ہے؟ نہیں مولانا صاحب، یہ میرا چینل ہے. پھر تو آپ کی شکل سے تو گراٹو چینل ہی لگ رہا ہے. یہ آپ کا دکھ سکھ ہے یا یہ والا گول مول ہے یا یہ ہل چل ہے؟ ہل چل ہمارا ہے جی. ہل چل میرا ہل چل. گول مول سے میں ہوں جی. آپ خود بھی گول مول سے بیز بھی ہے. مطلب چھوڑے جو جس بھی چینل سے ہے، آپ کو اپنی بات رکھنی ہے، قوم کے سامنے رکھیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے جو میں نے بتائی ہے جی کہ ہم عوام کی آواز بن کے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. جی جی. اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. عوام تیار نہیں ہے. میں نہیں، عوام تو 100% تیار ہے. عوام چونکہ تیار ہے، مگر میں عوام کو ایک عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ جو باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اب میں بغیر لکھے پڑھے ان کے ساتھ باہر نہیں نکلوں. اب اگر اپوزیشن نے احتجاج کرنا ہے اور اجتماعی شکل میں کرنا ہے تو پھر جو یہ بڑی دو پارٹیاں ہیں، نون لیگ والے اور یہ زرداری پارٹی، اچھا، یہ دونوں اگر مجھے اشٹام پہ لکھ کے دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دل و جان سے اور ساتھ رہیں گے، کوئی سودا بازی نہیں کریں گے، تو پھر تو میں اجتماعی طور پہ احتجاج کرنا پسند کروں گا. اچھا، ورنہ میں ایک قدم بھی اب کسی کے ساتھ نہیں چلوں. تو مولانا بداعتمادی اس نہج تک ہے کہ آپ اسٹیمپ پیپر چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، یہ بد اعتمادی کی بات نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیگم کو لے کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نکلتا ہے سسرال جانے کے لیے. جب سسرال جا کے موٹر سائیکل کی بریک لگاتا ہے تو پیچھے آواز دیتا ہے کہ اتریے بیگم صاحبہ، تو ہاں نہ کا جواب بھی نہیں آتا. تب پتہ چلتا ہے کہ جو بیگم صاحبہ ہیں وہ تو پیچھے فوارہ چوک میں گر گئی. تو اپوزیشن کے ساتھ ہمارا یہی تجربہ ہے کہ جب بھی ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں اور طے کیے ہوئے اسپاٹ کے اوپر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن پیچھے فوارہ چوک میں گر گئی. اپوزیشن فوارہ چوک پہ اور مولانا فضل الرحمان ڈی چوک. آپ نے بالکل بجا فرمایا، چونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایک آپ بات کو سمجھتے ہیں. مولانا صاحب 30 سال ہو گئے مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے. آپ اپنے سال نہ بتائیں، آپ کی شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ کم از کم 30-35 سال ہو گئے ہیں اس راہ پرخار میں. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے واقعی عراق ایران جنگ کور کی ہوئی ہے. یہ بھی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کے شکل پہ جتنا بارود ہی کٹا ہوا ہے اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ جنگی رپورٹر بھی رہے. مولانا صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی دیر ہو گئی رپورٹنگ کرتے ہوئے، مجھے سیاست میں نے اسٹام تو کوئی سنا نہیں نہ دیکھا ہے. یہ آپ احتجاج کر رہے ہیں یا کوئی 5 مرلے کا پلاٹ خرید رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا تجربہ بڑا لمبا چوڑا ہے جی، اور آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بھی واقعی لگ رہا ہے کہ کوئی تجربہ کار صحافی کا یہ سوال ہے. بڑی مہربانی. دیکھیں، یہ جو پلاٹ والا مسئلہ ہے، ہم وہ والے سیاستدان اللہ کے فضل سے نہیں. زبردست. جی جی. ہم نے کبھی بھی پلاٹوں پہ غور نہیں کیا. واہ جی واہ. ہم عوام کی خدمت پہ غور کرتے ہیں. ہم اپنی سیاست کا جو فوکس ہے وہ صرف عوام کو ریلیف دینے پہ رکھتے ہیں. جو عوام اس وقت پریشان ہے اس کے لیے آواز اٹھانا اور یک زبان ہو کے آواز اٹھانا بڑا اہم ہو چکا ہے. زبردست.
मगर हम देखते ये है कि जब हम यक जुबान हो के निकलते हैं तो फिर यक जुबान रहते नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद जुबानों में से मुख्तलिफ बोलियां निकलनी शुरू हो जाती। इसलिए उस बोलियों को इकट्ठा रखने के लिए हम अष्टाम लिखाना चाहते हैं, और वो लिखाएंगे बेशक हम 10 रुपए वाला लिखाएंगे। मौलाना साहब अब 10 रुपए का स्टाम्प नहीं आता, सलांटी आती है। देखिए बेशक 10 रुपए का स्टाम्प जी, या सादा कागज हो या सिगरेट की डब्बी फाड़ के उसके ऊपर लिखवा, इस दफा लिखवाना जरूर है वरना अंबार नहीं निकले। अच्छा मौलाना, आपकी एक शर्त और भी थी, पता नहीं आप उससे आप दस्तबरदार हो गए या बदस्तूर कायम है। आपने कहा था कि मैं इन लोगों का तब साथ दूंगा कि अगर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी नशिस्तों से इस्तीफा देंगे। तो देख, सियासत पे एक जगह पे जमे रह अच्छा नहीं होता, अच्छा थोड़ी सी लचक चाहिए होती है, और वो हर मामले में चाहिए होती है। बिल्कुल हमने ये शर्त रखी थी, मगर जब हमने देखा कि ये तो बदीद हो गए हैं तो फिर थोड़ी सी लचक पैदा की। अब इस्तीफा बेशक न दे, कम से कम लिख के तो देना यार कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और चलो इस्तीफा बाद में दे देंगे, या चलो यही लिख दे कि हम इस्तीफा देने पे गौर करेंगे, या इस्तीफा पे गौर करने के मुतालिक सोचेंगे। कुछ तो लिखे ना, ये तो कसम उठा के भी बाद में मुकर जाते हैं और बड़े आराम से कह देते हैं मुसल्ले पे मुसल्ला हमारी कसम उतारने वाला अल्लाह। अच्छा मौलाना, आपकी इन बातों से तो ऐसा गुमान होता है जैसे वो पीटीआई के रहनुमा शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि मौलाना अब रेंट क्राउड का काम करने लग गए, जिसको जितना बड़ा मजमा चाहिए मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। सीधे सुन ही नहीं सकते। वैसे मुझे तो मालूम नहीं है कि ये शहजाद अकबर कौन है। अच्छा, एक दो दफा टीवी पे देखा है इनको, मैं तो असब हाल देखने के लिए लगाया था टीवी। अच्छा। तो उससे पहले थोड़ा सा खबरें चलती हैं, तो उसमें एक ये आया था बंदा जिसने आके बताया मेरा नाम शहजाद अकबर है। कैसा लगा आपको? ये जो रेंट क्राउड वाला बात कर रहे हैं ये खुद रेंट कार वाला लग रहा था। अच्छा। और ऐसा जो रेंट कार वाला होता है उसके पास टोटल 2 गाड़ियां होती हैं, फोन करें तो एक अक्सर खराब होती है और दूसरी वर्कशॉप होती है। और फिर जब उससे पूछे तो दोनों गाड़ियां खराब है तो आप इधर बैठ के क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं अखबार के ऊपर दाल रख के खा रहा हूँ। इसलिए इस रेंट कार वाले का खुद कारोबार नहीं चलता तो इसने दूसरों का भी काम खराब कर रहा है। वैसे कई मोहल्लों में ऐसे आदमी शतीरियां और पट्टे भी रेंट पे देते हैं। या आजकल वैसे ऐसे आदमी शादी के ऊपर दुल्हन वाला सूट भी रेंट पे देते हैं, और दुल्हन से अगर सूट के ऊपर सालन गिर जाए तो उसके साथ रोटा डाल के भी खड़े होते हैं। अच्छा मतलब जोड़े ही बातें नहीं यार, 1-2 लाफ्टर और ले लो। ऐसे आदमी अक्सर टाइलें भिगोने के लिए बड़ा टप भी किराए पे देते। बड़े बड़े शादी हाल वालों बंदे सिर्फ बंदे गिनने के लिए रखे होते, और ये आखिर पे आधे बंदे बताते, कहते जी मैंने सिर्फ नून लीग के गिने। अच्छा चले मौला माफ कर दे अब उनको। अच्छा मौला ये फरमाइए, मैं अगले रोज आपका एक बयान पढ़ रहा था जिसमें आपने फरमाया कि जो लोग इमरान खान को इक्तदार में लेके आए हैं उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट देंगे। अब मार्च तो गुजर चुका, अब मिलियन मार्च होगा। तो इस बयान के बाद तो अंदाजा होता है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, या आप ये क्या जरूरत है ये वाला सवाल करने की? प्रोग्राम आपका मजाकिया और सवालात आपने खौफनाक इकट्ठे किए हुए। आपसे किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम मिजाई है? सीरियस है मेरा प्रोग्राम। ये आदमी तुमने सीरियस बिठाए हुए। मौलाना साहब आपने कभी मेरे आर्टिकल नहीं पढ़े? तुम्हारे जैसे बंदे जूते वाली दुकान पे होते हैं जिनको मालिक नीचे से कह रहा होता है आर्टिकल नंबर 615 फेंको, और जब गाहक चला जाता है तो वो ऊपर से रस्सी फेंक के सारे आर्टिकल ऊपर खींच लेते।
जुनैद बात असल में ये है, देखो ये आपने जो सवाल किया है इसका तुक नहीं बनता है इधर कर। आपका एक अखबारी बयान है और एक अखबार रिलीज का ये हक बनता है कि वो आपसे पूछे। ठीक है, तुम एक सीनियर जर्नलिस्ट हो और माशाल्लाह सहाफी हो, मगर यहाँ पे इतनी शिद्दत वाला सीरियस सवाल तुम्हारा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तुम एक मजाहिया प्रोग्राम के एंकर के तौर पे तैनात हो। मौलाना साहब चले खतरनाक सवाल छोड़ देते हैं, लाइट मूड का सवाल कर लेते हैं। देखे ये वही ना बात, आपकी वो बात हमें बहुत अच्छी लगी जो आपने हलवे के बारे में कही है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी ना हुई तो ये तमाम हलवा हुकूमत खा जाएगी। देखे ये हलवे के बारे में मौलाना हजरत मोहानी ने बहुत पहले बहुत अच्छा कलाम लिखा था। अच्छा। उन्होंने लिखा था, हलवे दी रमज मौलवी जाने सौजा हलवा रख के सराने, ओ ना चक ना कबरा, ओ हलवा खा खा खा, ओ हलवा खा खा खा। में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही। अदरक और लहसुन जो है वो पाकिस्तान का सालाना 80 करोड़ डॉलर खा जाता है। भाईजान, आपके ख्याल में पाकिस्तान जितनी भी सब्जियां और फल दूसरे मुल्कों से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, अपना ज़र मुबादला ज़ाया करता है, सबसे ज्यादा किन दो चीजों पे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज लगता होगा? पहला तो है जी के बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इंटेलिजेंट बच्चा है ये, ऐसे आप अंडर एस्टिमेट करते हो उसको। नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं, असल में मेरी बंदर से उसने बताया, उसने मुझे बताया कि भाई जी मुझे अदरक के स्वाद का नहीं पता। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, फिर हैट ते तू पाया ही होया। एक मिनट यही ब्रेक लगाओ, अगर तुम्हें अदरक का पता है ना तो फिर लामाला तुम्हें दूसरी चीज का भी पता होगा। दूसरी चीज भी बताने लगा हूं। कौन सी? ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद चीज होती है लहसुन। लहसुन। अदरक और लहसुन जो है वो पाकिस्तान का सालाना 80 करोड़ डॉलर खा जाता है। 80 करोड़ डॉलर का हम इंपोर्ट बिल जो है बढ़ा लेते हैं, ये अपनी आदत की वजह से कि हमारी हर हांडी में। और आपने कभी खाली अदरक नहीं सुना होगा, खाली लहसुन नहीं सुना होगा, इसके बाद 1 चम्मच अदरक 1 चम्मच लहसुन, यानी अदरक लहसुन इकट्ठा है, इकट्ठा इस्तेमाल होता है। और इत्तेफाक की बात ये है कि ये हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर खर्च भी कमोबेश बराबर ही करते हैं। अच्छा। यानी हम सालाना 7 लाख टन अदरक इस्तेमाल करते हैं और 8 लाख टन जो है वो लहसुन इस्तेमाल करते हैं। देखो ना यार, 7 लाख टन अदरक और ऐसे सिर्फ एक बांदर की गल सुना के किस्सा मुका जी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आई एम वेरी फेड अप। अच्छा, मुहावरा तो ये है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरे मुंह से ये निकलता है कि हमारा काश्तकार क्या जाने अदरक की काश्त। और कितनी हैरानी होती है कि हम ये जो 7 लाख टन अदरक है ये कमोबेश सारे का सारा ही इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे का सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। और लहसुन में से जो 8 लाख टन है वो हम 5 लाख टन खुद पैदा करते हैं और 3 लाख टन जो है हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। अदरक हम इंपोर्ट कर रहे हैं थाईलैंड से। जी जी, इसीलिए आपने देखा होगा अदरक अक्सर फीना होता है। अच्छा, मुझे हैरत होती है कि हम लोग अदरक की काश्त की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते। जैसा मैंने अर्ज किया ना कि 80 करोड़ डॉलर इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं और खुद हम लहसुन 3 लाख टन है और अदरक ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान के कई इलाकों में अदरक आसानी काश्त हो सकता है। मैंने अपने घर में खुद अदरक काश्त किया और कामयाबी के साथ काश्त किया था। अच्छा। ये आपने अपने लिए किया या आपका कोई बंदर वाकफ है? कभी आई नहीं मेरी तरफ। यार उसकी बात का जवाब दो, आगे से जुगत ना करो। अच्छा, तो उसने मुझे हकीम लुकमान का कॉल सुनाया। नहीं, उसने तो पूछा, तुम सीधा बताओगे भाई जी एडा माड़ा बांदर मेरा वाकफ नहीं हो सकता। सरदी जो आपने अदरक काश्त किया 1-2 हांडियों के लिए किया होगा। नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो 1-2 हांडी भी नहीं, 1-2 लुकमे भी नहीं बनते। 2 पौधे मैंने लगाए थे।
असल में बात ये है, बंदरों के बाद में मैं नहीं बोलता जी। तो सही करते हो, तो जाहिर है तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है। वैसे सचमुच की बात ये है कि हमारा टोटल जो एग्रीकल्चर है ना जी सिस्टम, उसमें कोई असूल नहीं बनाए गए। अगर आप वजह करके बताएं काश्तकारों को, काश्तकार जो है वो तो अपनी अपनी डोमेन में रह के बेचारे मेहनत कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा अदारा जो है उसकी जिम्मेदारी लगा दे कि भाई काश्तकारों को या जमीन के रकबे के हवाले से कि फलां रकबा फलां जगह फलां एरिया में कह रहा हूं कि मुख्तस कर दिए जाएं कि वहां पे ये चीज लगाई जाए, वहां पे ये लगाई जाए, और किसानों को ये बताया जाए कि आपके एरिया के हवाले से, आपकी जमीन के हवाले से कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद। मैं तो यार ये समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट, किसी ने भी ज़राअत और लाइफ स्टॉक को सीरियसली एक दिन के लिए क्या, एक लम्हे के लिए भी सीरियसली लिया ही नहीं। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग इस सेक्टर को हुई है और सबसे ज्यादा पैसा इस सेक्टर में खाया गया है और सबसे ज्यादा नॉन सीरियस जो है हमने इस सेक्टर को लिया है। वो सेक्टर जो पाकिस्तान की काया पलट सकता है, वो सेक्टर जो हमारे तमाम जो माशी दुख है उनका मरहम साबित हो सकता है। और अब बाकी जो मर्जी करते रहे, आप कभी भी आप इंडस्ट्रियल माइट नहीं बन सकते, एक सनती मुल्क जो है वो शायद नंबर 1 नहीं बन सकते, लेकिन ज़राअत और लाइफ स्टॉक ऐसा शोबा है जहां पे आप बआसानी थोड़ी सी तवज्जो के बाद आप पाकिस्तान जो है उसका शुमार दुनिया की 3-4 बड़ी कौमें होने लग जाता है। लेकिन हम अक्सर जिक्र करते हैं, किसी फसल को उठा के देख लें, किसी चीज को उठा के देख लें, तरक्की है माकूस है, रिवर्स गियर और सिर्फ जर्रे मुबादला कमाने के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि जो कौमें तरक्की कर रही है ना जी, वो सबसे पहले बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो है, वहां भी जो 30 साल पहले खाने पीने की चीजों के रेट थे आज भी वही है। हमने खुद फिर के देखा है ऐसा कि जो 30 साल पहले जितना था उससे हमें कोई रुपया 2 रुपया पाउंड 1 पाउंड 2 पाउंड का फर्क घर के खर्चे में पड़ा है। इस कदर नहीं पड़ा जितना पाकिस्तान में पड़ा। पाकिस्तान में तो गरीब आदमी के लिए जो रोटी खाना है वही वक्त बन गया। अच्छा, अब ये देखो ना, अदरक ना होने के बराबर पैदा होता है और लहसुन जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो, जब लहसुन, आपको याद होगा कि देसी लहसुन था, उसके बाद वो रिप्लेस होना शुरू हो गया चाइनीज लहसुन के साथ। वो आसानी के साथ छिल जाता था, उसकी तुरी बड़ी होती थी, मोटी होती थी। गोगा तो ऐसे हाँ कर रहा है जैसे इसकी जमीनें हैं। गोगे को यार पता सारा है, ये सबसे ज्यादा पता है। गोगे ने पूरी दुनिया को पहली दफा बताया कि लहसुन, पूरा लहसुन हाथ में ऐसे करे तो किस तरह छिल जाता है। मैं ये कह रहा था कि जब हमें ये तब्दीली आनी शुरू हुई, यानी हमारा देसी लहसुन जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, तो हमें फौरी तौर पे जो इंपोर्टेड लहसुन था उसका बीज, उसके एनवायरनमेंट, उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी। हमने क्या किया, हम वहीं बैठे हूं। अब वो जो देसी लहसुन है उसकी काश्त जो है वो इसलिए कम होती जा रही है, मजीद कम होती जा रही है कि जाहिर है कि उसकी डिमांड कम है। वलायती लहसुन की डिमांड ज्यादा है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए था। हमारे रिसर्च के इदारों ने उस पर कितना काम किया। अच्छा सर, यहाँ अदरक काश्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, मैंने बताया, मैंने घर में किया है। अगर घर में आपके अदरक काश्त हो सकता है तो कमर्शियल बुनियादों पर क्यों नहीं हो सकता? आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं है, आपने कभी सोचा ही नहीं है। देखो, पाकिस्तान अगर 40,000 एकड़ पे, सिर्फ 40,000 एकड़ कितना रकबा होता है, इतने एकड़ पे पाकिस्तान अगर अदरक काश्त कर ले तो पाकिस्तान जो उसकी इंपोर्ट से बिल्कुल खत्म हो सकती है, उसकी इंपोर्ट जीरो पे आ सकती है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का सारा अदरक जो है वो काश्त कर सकता है, सिर्फ 40,000 एकड़ पे। और किसी एक जिले या 2 अजला में पाकिस्तान फैसला कर ले, पाकिस्तान की हुकूमत जो है कि हमने इन 2-3 अजला में अदरक काश्त करना है, तो पाकिस्तान का $50 करोड़ बच सकता है। बहुत अच्छे। सर, ये लहसुन भी, लहसुन के बारे में मैंने बताया ना कि उसकी नई वैरायटी है, उस पर हमने काम नहीं किया। अब सुना है कि उसकी एक सुर्ख वैरायटी है जो देसी लहसुन की निस्बत जरा मोटी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और उसकी फी एकड़ पैदावार भी खासी है। फी एकड़ पैदावार मेरा ख्याल 150 मन से भी ज्यादा है। तो अगर हम 10,000 एकड़ पे लहसुन काश्त कर लें, ये नई वैरायटी है, तो हम ना सिर्फ ये कि जो लहसुन की इंपोर्ट पे करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं उससे भी बच जाएंगे, बल्कि हम 7-8 करोड़ डॉलर का लहसुन जो है वो एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे, सिर्फ 10,000 एकड़ पे लहसुन काश्त किया जाए। नहीं, मशवरा तो तुम्हारा माशाल्लाह बड़ा ठीक है, मगर इसमें यह है कि दुनिया वाले फिर भी बातें ही करेंगे यार कि गरीब ने थोम बेच के गुजारा कर
तो हमाराइयों को ये ताना सारी जिंदगी सुनना पड़ता है। भाईजान जब हम नानी के घर जाते थे उन्होंने छोटी छोटी कैरियों में अपने इस्तेमाल के लिए लहसुन काश किया होता था। अच्छा, लहसुन इनकी नानी ने काश किया होता था, लेकिन हांडी के लिए हम सायों से मांगते थे। जी नानी अम्मा ने लहसुन काश्त किया हुआ था और नाना अब्बू को ब्लड प्रेशर हुआ हुआ। और अजीजी भाईजान काश ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਰਬੇ ਦੇ ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। यार जैसे भी था करती तो सही ना यार। जो उसे गुस्सा इसलिए चल रहा है कि इतने का मेरा क्या बनना। अजीजी मुझे अदरक लहसुन से याद आया, ये गोगा हर शर्ट में ग्रीन क्यों लगता है? ये हमारे पाकिस्तान का वेदर इस तरह। यार मुझे ये बताओ, शर्ट का अदरक या लहसुन से क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आती मेरे ज़हन में आया इसको देख के कि जिਵੇਂ जंगल ਦਾ ऐसा चोंड है। जो मैं जंगल दा ऐसा जो तू भी जहाज दा कनेक्टर है। यार ना जहाज इस कंडक्टर होना है ना जंगल है ऐसा चोंड। तो दोनों जी जुगत गलत है तो क्यों करने? नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर हम रोशनी डालते हैं अपने महबूब दोस्त अब्दुल गफूर जिम्मी से गुफ्तगू करते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, बड़ा मेहरबानी तुमको। मैं तो सकी शुक्रिया अदा करके टकना। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिम्मी। पूरी दुनिया में फैले हुए लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो तुम्हें इतने शौक से देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको दरपेश मसाइल तुम्हारी जुबान से अहले इक़्तिदार तक पहुंच जाए। इसका ना मैं बताना चाह रहा था कि मैं क्या उधर लोग कहते हैं, कहते यार जिम्मी तू टीवी के ऊपर आता बड़ा मजा आता है। इधर और भी कई आते हैं। देखो मैं आके इधर मुझे शौक नहीं है इधर आके इंटरव्यू देना, मुझे पता ही नहीं इंटरव्यू कैसे देते हैं। मैं तो अपने जो ओवरसीज बहन भाई है मैं उनका प्रॉब्लम, चूंकि मैं भी एक अरसा से बाहर के मुल्क में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ। मैं कहता चलो मेरी वजह ना लगा किसी ने को बसौट है इसने करे को बुरी गाली। तो मैं वैसे भी आके जरा तुहानू गवर्नर भी वेख लेना वहां फिर शर्मिंदा भी होना वहां गवर्नर देख मगर मजा भी आना। मजा भी। मेरी बात सुनो, तुम संजीदा अंदाज में अपने मुतालबात जो है ना वो हुकूमत तक पहुंचाया करो, इसमें तुम जुगतबाजी से गुरेज किया करो। नहीं मुझे तो जुगत आती नहीं, मैं ना ही करता जुगत। मैं जोक करके तो वैसे ही मजा लेता हूँ। मैं मेरे ज़हन में आता भी है जोक तो मैं इधर नहीं करता। आती मेरे ज़हन में आया इसको देख के कि जिਵੇਂ जंगल ਦਾ ऐसा चोंड है। जो मैं जंगल दा ऐसा जो तू भी जहाज दा कनेक्टर है। यार ना जहाज इस कंडक्टर होना है ना जंगल है ऐसा चोंड। तो दोनों जी जुगत गलत है तो क्यों करने? लेकिन जुगत जुगत ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? यार मगर थोड़ा बहुत सच तो होना चाहिए ना। जिस तरह जुल्फी नु देख के मेरे ज़हन में आया है जिਵੇਂ जेब विच रखने वाला सप ਹੁੰਦਾ है। मेरा एक दोस्त से वो रखता सी छोटा सा जेब विच रखना। तो थोड़ा सा लगना तो चाहिए ना, इसे फजूल बात तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जंगल में तो ऐसे चोट ही नहीं। जेब में तो चलो कुछ लोग शौकिया सांप रखते हैं छोटे सांप। जी जी। अब ना ही जहाज में कंडक्टर होता है तो झूठी बात नहीं करनी चाहिए। चलो जिम्मी छोड़ो, जुगत का गुस्सा नहीं करना चाहिए, जुगत का मजा लेना चाहिए। जुगत का मजा और जर्दे की करोड़ी का मजा ये कहलाता चीज। एडा छोटा हाथी शेर नु वेख के फटाफट मां दे थले वड़ गया। चलो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि संजीदा गुफ्तगू करो यार। चलो अब तुमने तीनों को तो कर दिया, एक ही रह गया यार। इसने क्या गुनाह किया? इतना छोटा बंदा सिर्फ इस वास्ते मोटरसाइकिल नहीं खरीदना कि ब्रेक लगी तो थले पैर नहीं लगने। अच्छा चलो यार छोड़ो, चारों पूरे हो गए ना। नहीं यार अभी तुम रहते हो ना। मुझे जुगत करना चैनल की पॉलिसी नहीं। चलो जुगत नहीं करते, सच्ची बात बता दे। इस तरह ना डॉक्टर सीरियस मरीज सद के बीवीडी आवाज के अंदर भांडे टोन चला जाना। आप कर ही दिया ना, बदला ले। चले आप पहले करें। अच्छा जी कोई बदतमीज नहीं है वो सीनियर। यार बताओ, जुगत ना करो ना। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि कोई रेसलर रिंग में बेहोश हो जाए ना तो ऐसा जो बंदा चुक के लाई दो। कितनी बुरी बात। यार जिम्मी तुम किधर बात ले गए? हम तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहे थे, ये जो डिजिटल रोशन बैंक अकाउंट शुरू हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, कि वो बैरून मुल्क बैठ के ही पाकिस्तान में अपना अकाउंट जो है
وہ آپریٹ کر سکیں گے, ATM یوز کر سکیں گے, تو تم لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہو گئی. یار مبارک والا اس نے وچ کون سا بات ہے, الٹا وقت پا گیا ہم. کیوں؟ یا پہلے کو بہانہ لگا لیتے تھے, اگر ادھر سے کوئی رشتہ دار کہتا سے پیسے بھیجو مجھ کو, تو اس کو بہانہ لگا لیتے تھے کہ یار میرا تو اکاؤنٹ فریز ہوا پاکستان میں. اب تو اگر ادھر اکاؤنٹ کھلوا لیں گے تو بیگم نے کہنا کہ ATM تے ہی چھٹ جانا, یا غلطی سے بھی ادھر ATM کارڈ بھول گئے تو جدے ہتھے چڑھنے اس نے کہنا یار ادھر پن نمبر بھی ڈس چھوڑ. اب تو اوورسیز پاکستانی کو بہانہ بنانے جو کہ بھی نہیں رہے. ادھر تو جو ہے تم کو کیا بتاؤ, پہلے بھی تم کو بتاتے ہیں تو کوئی یار دوست احباب جتنے بھی ہونے نے نا, وہ سب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ لالچ نہ رشتہ ہونا. بہت کم تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں ادھر آ جاتا ہوں کہ یار ادھر صرف ہاتھ کھیت کے دل کی پڑاس نکال کے چلے جاتے. ادھر تو کسی رشتے دار کے پاس بیٹھ کے لگو تے اگلا ویک دیتے ہیں انہوں یہ ساری پڑھاس دے وچوں ایڈی گچی کٹھو نپنی. کئی پہلے ایسے کزن نے جو ویلے نے انہوں نے پتہ جمی بار ہونا ہے, ان سے کو پوچھے نا کہ تمہارا کیا کاروبار ہے, وہ کہتے ہیں یار میرا پڑھا بار ہونا ہے. بندہ کہتا نہیں میں 2 مشینیں لائیں ہوئی ہیں, انہوں نے پڑھا بار لایا ہویا. اسی طرح جن کے بچے ادھر رہتے ہیں, بیگم ادھر رہتی ہے, بندہ خود بار ہونا ہے, اس کی بیگم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ ادھر کیا کر رہا ہے, کس طرح پیسے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ادھر پیپل نے درخت نے نال پیسے لگنے نے, اور میرا خامد ہے جرا اٹھو توڑ کے پان کے تھیلے پاڑ کے اتنے پیٹ. یہاں پہ اگر وہ بندہ کام کر رہا ہو تو وہی جو بیگم ہے, وہی ہماری بہن جو ہے, وہ بیچاری اگر 50,000 گزارا کر لینی ہے, تو یہ بندہ باہر ہے تو کہنی ہے کہ 50,000 صرف میرے نوکرانہ خرچہ, باقی کچن نہ خرچہ, بچیاں نہ سکول نہیں فیس, ہر چیز چلے پیچھے پئی ہے. اڈیٹر تُسا کی جڑا 50,000 بھیجا اس نے میں تنخواہ دے چھڈیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنی چادر ہوئے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے. جیمی یار میری تو چادر بھی وڈی ہے, پھر بھی میرے پیر باہر رہنے نے. تو میرا خیال ہے پارٹی چادر لے کے سونا, یا تیری چادر پارٹی ہوئی ہے یا تو روٹیاں لے رومال دا نہ چادر رکھا. ویسے واقعی آن دا سیریس نوٹ بڑا اچھا یہ سہولت ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ان کا ایک جو یہ فائنینشلی جو رابطہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اس کو ایزی بنا دیا اس حکومت نے, اچھا کام کیا. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط ہے وہ غلطی تے ایسا نہیں اپنی ہے نا, ساڑھے جنہیں کرانے بندے نے انہوں نے غلطی ہے نا, گورنمنٹ تو اچھا سوچ رہی ہے. ویل ڈن. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقت, ہمارے ساتھ رہیے. جتنے بھی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں نا دلہن والوں کی طرف, ان کا کھانا پینا حقہ پانی سگریٹ ہر چیز کا خرچہ دلہے والوں کو دینا پڑتا ہے, بلکہ جہیز بھی دلہا والے دیتے تھے. اچھا جی, شادی کی رسومات شروع ہو چکی ہیں. اکثر گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ موسم اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں شادیاں بچوں کی یہ ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے میرے زیادہ خرچے ہو رہے ہیں, پیسے لگ رہے ہیں, رسومات جاری ہیں. ویسے کرونا کی وجہ سے یہ ہاتھ ہولہ کیا ہوا ہے, اس کے باوجود میں آپ کو ایسی رسومات یاد کروانا چاہتا ہوں جس پہ ہم اب یقین ہی نہیں کرتے. بلوچیوں کی ایک رسم ہوتی تھی جو اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. بلوچوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی نا جی, تو دلہے والوں کا کباڑا ہو جاتا تھا, دلہن والوں کو کوئی وقت نہیں تھا ہوتا. اب تو دلہن والے بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں جہیز فلان ٹمکان روٹی. بلوچوں کی ایسی رسم تھی ایک جسے ولور کہتے تھے. وہ ولور رسم یہ تھی کہ جتنے بھی مہمان بھی آئے ہوئے نا دلہن والوں کی طرف, ان کا کھانا پینا حقہ پانی سگریٹ ہر چیز کا خرچہ دلہے والوں کو دینا پڑتا, بلکہ جہیز بھی دلہا والے دیتے تھے. یہ جو اب دلہن والوں کو بیچاروں کو لسٹیں دی جاتی ہیں نا جہیز کی, اس وقت دلہن والے بتاتے تھے کہ بھائی جی اسی اے چیزاں لینی ہیں, ساڈی کڑی نو اے چیزاں چاہیدیاں. تو یہ رسم جو ہے یہ آہستہ آہستہ اب دم توڑ گئی ہوئی, کہیں کہیں شاید ابھی ایسا ہوتا ہو. اب ولور رسم کی بجائے ولغر رسمیں آ گئی. یہ ولور کے مطابق تو جو کھانا ہے نا جی بارات والا, وہ بھی دلہے والوں کو ہی دینا پڑتا. جی واہ. اور یہ جو رسمیں ہیں یہ ہماری دینی اقدار کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ یہ عرب کلچر سے آئی ہوئی. اچھا, اور بہت ساری دلچسپ رسمیں میں آپ کو مختلف قبائل کی سناتا ہوں. جیسے
पख्तून भाई, हाँ जी, उनमें एक बड़ी वधिया रस्म होती थी जो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब बहुत कम हो गई है, कि जो दूल्हा है ना वो जब दुल्हन लेने के लिए जाता है तो दुल्हन वाले जो हैं वो उसे एक चारपाई पे बिठा के तो उछालते हैं। अच्छा, हाँ, उसके जो सारे दोस्त अहबाब जो लड़के हैं मर्द हजरात वो उसे चारपाई पे बिठा के तो ऊंचा ऊंचा उछालते हैं, और उसको ये होता है कि उसने गिरना नहीं होता, उसने काबू में रहना होता है। ये उसे उछालते हैं और वो चारपाई से गिरने से बचता है। मकसद इस रस्म का ये होता था कि दूल्हा को ये तरगीब दी जाती थी कि तुमने मुश्किल हालात में भी कायम रहना है। ये मेरा ख्याल है रस्म कोई गोगा टाइप दूल्हा गया है तो खत्म हो गई है। उसकी 3-4 चारपाइयां तोड़ी हैं इस वालों की। उन्होंने क्या भाई जी यहाँ रस्म बंद करो तो यहाँ चारपाई अगो तो अपने घरों लैके। ये जुल्फी को उछाला सर 2 दिन बाद नीचे आया। नहीं, इसको तो इसलिए बेचारे को उछालना बंद किया ना कि एक बारी उछाले तो तो कहां ले गया। दुल्हन वाले बेचारे सोटियां लेके मगर साडा मुंडा छड्ड कहां को भाई जी मैनू अल्लाह दी हवा चो लभे है। इस रस्म को अक्सर फालंग कहते थे, वैसे इसका नाम लफ्ज असल है पालंग। एक और रस्म थी वो भी पश्तून जो हमारे भाई हैं उनमें पाई जाती थी जी जी, कि उसे कहते थे जुल्फ संवारने की शब। दुल्हन को शादी से चंद दिन पहले कोने में बिठा, दूल्हा वाले हैं उनका अगर घर करीब है तो चंद दिन, और अगर दूर है तो कम से कम 1 दिन वहां से खवातीन आती थी और आके दुल्हन के बाल संवारती थी और उनको बनाती थी अपनी मर्जी से। जो उनकी मर्जी का डिजाइन है उस मर्जी से उसके बाल संवारती थी। इसका मेरा ख्याल है मकसद ये होता था कि दुल्हन को एक तो दूल्हा के घर वालों के साथ अपनाइयत, और दूसरा ये भी होता था कि वो अपनी मर्जी के चूंकि बाल संवारती थी इसलिए दुल्हन को ये भी बताना होता था कि तुमने उधर जाके बनना संवरना इनकी मर्जी से। क्या बात। एक और बलोचों की रस्म होती थी जिसे दरी कहते थे। दरी, हाँ, उसमें चंद दिन पहले शादी से दुल्हन को छुपा दिया जाता था, किसी कोने में बिठा दिया जाता था। अच्छा, और जो मोहल्ले की खवातीन हैं वो दुल्हन देखने आती थी और उनको मुंह दिखाई जो है वो पैसे देने पड़ते जी। इसलिए अक्सर जो अपना जुनैद सलीम टाइप खवातीन होती थी ना वो पैसे बचाने के लिए उस रस्म से पहले ही जाके लड़की दे। जिस तरह मुझे कह देता है ना कि भाई जी वड्डी तो पहले किस दिन आके मेरे घर रोटी खा, क्योंकि वड्डी तो पक्का होना है वाफर, और तुम्हें चूंकि तुम गुजरा वाली है कश्मीरी हो तुम्हें वाफर देख के तो दौरा पड़ जाता, फिर मुझे जाके पहले ही खाना पड़ता है आलू मेथी के साथ। अजीजी खाने पीने की कोई बात हो गोगे की स्माइल देखो। यह एक बंदे की हॉबी अगर ये है तो फिर उसको खुशी तो होगी। अच्छा, एक और रस्म जो पंजाब में भी अक्सर पाई जाती थी, वैसे ये हिंदुओं की रस्म अच्छा, उधर से ली गई है। ये वैसे मुझे तो कभी भी अच्छी नहीं लगी, वैसे देखा हुआ है मैंने 1-2 शादियों पे कि दुल्हन जब जाने लगती है ना, रुखसत होती है, तो उसे चावल पकड़ाए जाते हैं किसी छाबे में या छन्ने में, वो ऐसे पीछे फेंकती है चावल के नेड़े चावल जाके भावे आलू पाले भावे मटर पाले भावे थोड़ी जी मिट्टी पाले। शेख फैमिलीज में जब ये रस्म की जाती थी ना तो पीछे दुल्हन के 4 बंदे चादर लेके खड़े होते थे। ये इसका मकसद कहते हैं जी कि दुल्हन जो है वो अपने हिस्से का रिज़्क अपने माँ बाप के घर छोड़ के। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये, किसी बुजुर्ग से पूछा गया मोमिन की पहचान क्या है, जवाब मिला जिसके मोबाइल पे पासवर्ड ना लगाओ। खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।